Chapter 10 Electric Current. We know that heat flows from higher temperature to lower temperature, and the rate of flow of heat is called heat current. Similarly, charge flows from high potential to low potential, and the rate of flow of charge is called electric current. Heat flows from higher temperature to lower temperature, and the rate of flow of heat is called heat current. Similarly, charge flows from high potential to low potential, and the rate of flow of charge is called electric current. Direction of electric current. It is a section of conducting wire or copper wire. In this conducting wire, electrons are randomly moving. Diagram: randomly moving electrons in copper wire or conducting wire. When we connect this copper wire or conducting wire with battery, then these electrons are moving from B to A end, or moving from negative to positive end. This end is positive end and this end is negative end. These electrons are moving to same direction. We say that direction of motion of electrons, and the direction of electric current is positive end to negative end, or direction of electric current is opposite to direction of motion of electrons. We can write that direction of electric current is positive to negative end, or direction of electric current is opposite to direction of motion of electrons. Means direction of electric current is positive to negative end, or direction of electric current is opposite to direction of motion of electrons. इसके लिए अपन दो बातें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो एक तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है, दूसरा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन
इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट होती है, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट the amount of charge passed from a point per unit time is called electric current. In any electric circuit, the amount of charge passed from a point per unit time is called electric current. Means किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज की अमाउंट पर्टिकुलर एक पॉइंट से यूनिट टाइम में कितनी पास्ड हो रही है, यूनिट टाइम में पर्टिकुलर एक पॉइंट से चार्ज की कितनी अमाउंट पास हो रही है, वो ये इलेक्ट्रिक करंट। इफ चार्ज क्यू, तो अपन मान लेते हैं कि इफ चार्ज क्यू passed from a point in time t, then कि चार्ज q है और पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पास्ड होने वाला चार्ज है वो q है और टाइम लिया है t। टी टाइम में एक पॉइंट से क्यू चार्ज पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? देन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू, अपन कह सकते हैं कि चार्ज अपॉन टाइम, और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन T. Q is charge, T is time. अभी अपन ऐसे कहते हैं कि if n electrons pass from a point in t time, then a total of Ne charge will pass in t time from that point. Hence Q is equals to N. If an electron pass from a point, यदि n इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, कितने टाइम में? t टाइम में, then a total of Ne means n means number of electrons, E means charge of electron, तो total of Ne charge will be, अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो Ne चार्ज है
वो टी टाइम में उस पॉइंट से पास हो रहा है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू एनी, तो इक्वेशन में डालेंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, क्योंकि Q है एनी, तो I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी, वेयर E is N is number of electron and E is charge on electron। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं E, जो कितना होता है, whose value is 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक current, we know that I is equals to Q upon T. Q is charge, T is time. So charge unit is coulomb and time unit is second, and coulomb upon second is ampere. So unit of electric current is ampere. Electric current is also given as 1 milliampere is equals to 10⁻³ ampere, and 1 microampere is 10⁻⁻6 ampere. वन मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर की वैल्यू सबसे कम होती है, उसके बाद मिली एम्पियर की और उसके बाद एम्पियर। तो वी कैन राइट दियर माइक्रो एम्पियर उसके बाद मिली एम्पियर एम्पियर। ओके, definition of 1 ampere. When Q is 1 coulomb and T is 1 second, then I is equals to Q upon T, 1/1 and 1 ampere. We can say that if 1 coulomb charge is passed from a point in 1 second time, then
the current in the circuit will be 1 ampere. When Q is equal to 1 coulomb and T is 1 second, then 1 by 1 is 1 ampere. और अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि if 1 coulomb charge is passed from a point in 1 second, then the current in the circuit will be 1 ampere. यदि चार्ज 1 कूलम हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो सर्किट में फ्लो होने वाला या पास होने वाला जो करंट है आई, वो 1 एम्पियर होता है. ओके. वी यूज एन एमीटर. एमीटर एक इक्विपमेंट होता है. वी यूज एन एमीटर इन सीरीज of the circuit to measure electric करंट. एक इक्विपमेंट है एमीटर. एमीटर का यूज़ अपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए करते हैं, और इसको किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है. फिर अपना आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पे एक एग्जाम्पल है, वो देखते हैं. एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. 1 कूलम अगर चार्ज 1 कूलम है तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये अपन को फाइंड करना है. तो अपन को दिया हुआ है केवल चार्ज, वो है 1 कूलम. चार्ज मीन्स चार्ज दिया गया अपन को, चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n अपन को फाइंड करना है. तो फॉर्मूला एक अपने देखा था कि Q इज इक्वल टू एन ई. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो Q 1 कूलम है, Q की जगह अपन 1 लिख देते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन को फाइंड करना है, और ई का वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अपन ने पहले पढ़ा था कि ई का वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19. ओके. अब अपन को एन फाइंड करना है, तो एन को इधर लेके आएंगे. एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19. अभी ये इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी. n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 19 अपॉन 1.6 अपन लिख सकते हैं. अभी यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो ये हो जाएगा 16, और 1 में 16, 1 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे जीरो लाने के लिए यहाँ पे 10 की पावर 18 कर देंगे. तो 1 0 10 इंटू 10 की पावर 18. ओके.
और ये 1.6 है, इसका पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये नीचे हो गया 16। अब 100 में 16, 100 को 16 से डिवाइड कर सकेंगे और डिवाइड करने पे आएगा 6.25। ये 10⁻18 ऐसा कैसा आ जाएगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।